بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی، میں اور وحید اختر چودھری صاحب آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ایک تو آپ ہمارے یوٹیوب پہ پروگرام دیکھتے ہیں، ہمیں سبسکرائب بھی کیا کریں اور لائک بھی کیا کریں، اور ہمیں یوٹیوب چینل جو ہے ہمارا اس پہ اپنی رائے بھی ضرور دیا کریں۔ آج کا جو ہمارا پروگرام ہے بنیادی طور پہ آج ہم کرنا چاہ رہے تھے ایگریکلچر پہ، لیکن آج ہمارا ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال چکر لگا تو وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ طبی عملے کی ہڑتال جاری تھی۔ اب وہ ہڑتال سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہاں پہ جزوی طور پر ہڑتال تھی کہ کچھ کھلے ہوئے تھے، لیکن کچھ ڈاکٹرز بیٹھے تھے، کچھ نہیں بیٹھے تھے۔ اور جس وقت ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں تو اس وقت جو ہے نا وہاں پہ میٹنگز بھی چل رہی تھیں انتظامیہ کی، اور کل ڈپٹی کمشنر صاحب نے بھی ڈی ایچ کیو اسپتال کو چکر لگایا تھا۔ اچھا، بنیادی طور پر جو ہڑتال چل رہی ہے اس کے اور بھی کچھ عوامل ہوں گے، لیکن جو پی ایم اے کا موقف ہے یا جو وہاں پہ بات ہوئی، چوہے صاحب کی ان سے بات ہوئی، ہماری بھی بات ہوئی، تو وہ جو آؤٹ سورس کرنے جا رہی ہے، مطلب ایک آؤٹ سورسنگ کا عمل جو چل رہا ہے طبی مراکز کا، اس حوالے سے حکومت پنجاب جو آؤٹ سورس کرنے جا رہی ہے۔ اور اس میں پہلے فیز میں تو میرے خیال میں سی ٹی اسکین کا جو ہے وہ آؤٹ سورس کر بھی دیا گیا، میرے خیال جو ڈی ایچ پی کا سی ٹی اسکین کا سیکشن ہے وہ آؤٹ سورس کر بھی دیا گیا، یعنی کہ اب اس کی فیس مخصوص 2500 ہوگی، ہر امیر غریب کو 2500 ہی دینا ہوگا۔ بنیادی طور پر جب ہم آئین پاکستان کو دیکھتے ہیں تو تعلیم اور صحت جو ہے یہ حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے، یعنی کہ ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے شہریوں کو فراہم کرنا، تو بنیادی آئینی حقوق میں آتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلے دنوں ہم نے دیکھا کہ بہت سے اسکول جو ہیں وہ بھی آؤٹ سورس کیے گئے۔ جنگ میں پہلے فیز میں بخال میں 130 کیے گئے تھے، اور مزید بھی پلان تھا کہ وہ کیے جائیں گے، اس کے بارے میں ابھی ہم کچھ کہہ نہیں سکتے، لیکن 130 تو کر دیے گئے تھے۔ اسی طرح اب سننے میں آ رہا ہے کہ پنجاب میں جو ہے نا، پنجاب بھر میں بہت سارے جو ہیلتھ یونٹس ہیں ان کو بھی آؤٹ سورس کیا جائے گا۔ اب اس کے کیا اثرات ہوں گے کیا نہیں ہوں گے، اپنے سطح پہ ہر بندہ کوشش کر رہا ہے، ان کے کچھ تحفظات بھی ہیں، لیکن بنیادی طور پہ جو بھی صورتحال ہے، طبی عملہ ہڑتال پہ جائے یا آؤٹ سورسنگ ہو، کچھ بھی ہو، تو اس کی بنیادی طور پہ جو متاثر ہوں گے وہ عوام ہوں گے، ایک عام شہری ہوگا۔ تو یہ سب کیا کہتے ہیں، مطلب یہ کیا عمل چل رہا ہے، کیا صورتحال ہے، اور اس سے متاثرین یقینی طور پہ عوام ہیں، لیکن طبی عملہ بھی متاثر ہو رہا ہے، کیا کہتے ہیں آپ اس پہ؟ جی بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملک صاحب، صورتحال یہ ہے کہ کچھ عرصے سے جو پنجاب گورنمنٹ نہیں آئی ہے، تقریباً 1 سال ہو گیا ان کو، 1 سال سے کچھ زیادہ ہو گیا ہے، وہ بہت سارے ادارے جو ہیں وہ پرائیویٹائز کر رہے ہیں۔ اس میں ایجوکیشن بھی ہے اور ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ان کی پرائورٹی ہے۔ سب سے پہلے جو دیہی علاقوں میں جو بی ایچ ای ہوتے تھے، بیسک ہیلتھ یونٹ جنہیں آر ایچ سی ہوتے تھے، ہوتے تھے، ان سے وہاں انہوں نے شروع کیا ہے۔ بیسک ان کا یہ پروگرام یہ ہے کہ یہ پرائیویٹ لوگوں کو ٹھیکے پہ دے دیے جائیں۔ اب ظاہر ہے جس بندے نے ایک چھوٹا ہیلتھ سینٹر جو ہے وہ ٹھیکے پہ لینا ہے، فرض کیا 50 لاکھ میں وہ ماہانہ اگر ٹھیکے پہ لیتا ہے، تو اس نے وہ 50 لاکھ کے علاوہ اپنے بھی کمانا ہے۔ اس نے اگر 50 لاکھ خرچ کیا ہے تو اس نے ساتھ 50 لاکھ کمانا بھی ہے۔ اب وہ ظاہر ہے اس نے ڈاکٹر کو تنخواہ دینی ہے، عملے کو تنخواہ دینی ہے، نچلا جو سٹاف ہے پیرامیڈیکل سٹاف اس کو تنخواہ دینی ہے، صفائی ہے، بجلی کا بل ہے، اس کے ٹیکسز ہیں، وہ سارے ملا کے اس میں سے بھی اس نے پرافٹ نکالنا ہے۔ تو اس کے لیے جو عوام کو سہولت، مفت دوائی ملتی ہے، مفت طبی سہولت ملتی ہے، وہ عوام کی جو سہولت ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ اسی طرح ادویات کو تو خیر نہیں کیا جا رہا، صرف لیکن اس میں سروسز ہیں، لیکن نیکسٹ پروگرام یہی ہے، نیکسٹ پروگرام یہی ہے کہ وہ جو ان کا ایم او یو سائن ہوگا اس میں یہ واضح طور پہ لکھا ہوگا، جو آپ شاید پڑھیں نا، جو ان کا نوٹیفیکیشن ہوا ہے اس میں میڈیسن کا لکھا ہوگا کہ میڈیسن وہ اس قیمت پہ فراہم کریں گی، مطلب جو گورنمنٹ آج فری دے رہی ہے وہ بعد میں وہ اس کی پیمنٹ ہوگی کچھ نہ کچھ، مگر آپ 10% کہہ لیں یا 20% ہوگی، وہ پیمنٹ دے کر آپ کو دوائی ملے گی، اس وقت آپ ان کے محتاج ہوں گے۔ میرے جو سننے میں آیا تھا اس میں یہ آیا تھا کہ صرف سروسز کو آؤٹ سورس کیا جا رہا ہے۔ نہیں سروسز نہیں، باقی ساری چیزیں ایسا جیسے ابھی آپ میرے ساتھ ہی تھے جب میں ڈاکٹر سے موقف لے رہا تھا کہ سی ٹی اسکین جو ہمارے اہم ضرورت ہے انہوں نے آؤٹ سورس کر دیا۔ اب جو اس کی سروسز ہے اس کا 2500 روپے ہے، کہ غریب آدمی ہوتا تھا، کوئی ریزرونگ ہوتا تھا تو ایم ایس یا ڈاکٹر لکھ دیتا تھا کہ یار اسے کا فری کر دے۔ ہمارے دوست اب آپ کہیں جاتے تھے، کوئی وی آئی پی چلے جاتا تھا اس کا فری ہو جاتا تھا، لیکن اب کسی کا بھی فری نہیں ہوگا، غریب ہوگا امیر ہوگا اس کو 2500 روپے دینا پڑے گا، اور پھر سفارشیں علیحدہ ہوں گی، وہ
वो कहीं जो अमला होगा उसका, वो जाहिर है उसका अपनी मर्जी का अमला होगा, जो जिसने आउटसोर्स लिया है, ठेका लिया है, तो वो अपने मर्जी मन मर्जी करेगा, 100-200 रुपए वो भी लेगा। इसके बहुत से असरात, मतलब अगर हम इसको दो हिस्सों में देखें तो हम ये देखते हैं अक्सर नाज़रीन के यकीनी तौर पे जो डॉक्टर्स हैं या तिब्बी अमला है, उनका एक हमें शिकायत भी रही है कि वो डॉक्टर्स जो है ना वो बुनियादी तौर पर अस्पताल में बहुत कम बैठते हैं, आते हैं, लेकिन अपनी क्लिनिक्स को ज़्यादा तरजीह देते हैं। ये एक शिकायत मौजूद ज़रूर थी, लेकिन जो अब होने जा रहा है मेरे ख्याल में इससे ये चीज़ें ज़्यादा मसाइल पैदा होंगे, क्योंकि एक स्ट्रक्चर, इतना बड़ा स्ट्रक्चर आपके पास मौजूद है, मेरा ख्याल में उस स्ट्रक्चर को बेहतर किया जाना चाहिए था, ज़्यादा बेहतर, ये नहीं कि उस स्ट्रक्चर को ही आप ख़त्म कर दें। तो डॉक्टर साहब इस पर आप क्या कहेंगे कि मतलब एक चीज़ जो है मौजूद है, उस निज़ाम को बेहतर करने के लिए काम क्यों नहीं किया गया, बल्कि उस निज़ाम को यकसर तौर पर तब्दील क्यों किया जा रहा है, इसके पीछे आप क्या समझते हैं कि मतलब ये क्यों किया जा रहा है? असल में इशू ये है कि देखें, डॉक्टर तो इसको तो कोई नुकसान नहीं होगा, इसमें पब्लिक सर्व करेगी, आप सर्व करेगी। अब देखें ना, डॉक्टर है वो नौकरी करेगा, शाम को अपना प्राइवेट क्लिनिक करेगा, उससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर उसकी अगर आम तनख्वाह कम होगी थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ेगा, लेकिन उसकी आमदनी तो वही रहेगी, उसके तो लिए और बहुत सोर्सेज हैं। अब उसमें सफ़र कौन करेगा? आम मेरे जैसा, आप जैसा आम आदमी जो है वो सफ़र करेगा। वो पहले अपना टाइम लेगा, अपने सोर्सेज इस्तेमाल करेगा, फिर पैसे देगा, फिर पर्ची बनवाएगा, फिर दवाई देगा, फिर जो अद्वियात बाज़ार से मिलनी है वो लेगा, फिर टेस्ट करवाएगा। उस पे जो आज मरीज़ जो है अगर वो 100 में, 200 में, 400 में, 500 में अपना चेकअप करवा लेता है सरकारी हॉस्पिटल में, या छोटी मोटी फ़ीस अल्ट्रासाउंड की दे के, या कोई डेंटिस्ट की 50 रुपये फ़ीस दे के, वो तो उसका हज़ारों में पड़ जाएगा। हमारे मुल्क में पहले ही जो है लोगों के पास जो है बुनियादी सहूलियात नहीं है। ये स्टेट की ज़िम्मेदारी है हेल्थ को फराहम करना, ये बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। और इसकी ज़रूरत इसलिए महसूस की जा रही है उनके बकौल, सियासी जो हुकूमत के बकौल, कि जी यहाँ करप्शन बड़ी है, डॉक्टर काम नहीं करते, इतने बड़े यूनिट्स को चलाना हुकूमत की जो है वो पहुंच से बाहर हो रहा है, उनको काबू करना, डॉक्टर्स की ब्लैकमेलिंग है, पंजाब मेडिकल एसोसिएशन की ब्लैकमेल है, पैरामेडिकल स्टाफ की ब्लैकमेलिंग है। वो इस किस्म के उन्होंने जो अपने जवाब जो है बताए हैं कि इस वजह से हम कर रहे हैं। प्राइवेट का पब्लिक प्राइवेट करेंगे तो हो सकता है कि जी वो उनको काबू करे, जिसने ज़ाहिर है काम लेना है तो अपने वो उसके मुताबिक काम लेंगे। लेकिन आज इसमें दूसरी चीज़ हम देखते हैं कि एक तरफ हेल्थ कार्ड भी शुरू किए हुए हैं, यानी कि क्या आप समझते हैं कि उस हेल्थ कार्ड का भी यहाँ पे फ़ायदा होगा कि नहीं होगा? जी बिल्कुल नहीं होगा। वो ज़ाहिर है वो ज़िम्मेदार नहीं है, वो कहेगा मैं क्यों करूँ, ये तो गवर्नमेंट की पॉलिसी थी, वो अपने सोर्सेज से क्यों देगा 5-10 लाख रुपए। अभी तक मेरे ख्याल में कोई MOU इस किस्म का सामने तो नहीं आया, ये आया कहीं सामने? नहीं, अभी सामने नहीं आया, लेकिन डिसाइड हो चुका है। अच्छा, आपके कहने का मकसद है हाँ, डिसाइड हो चुका है। हाँ जी। लेकिन चले अब आइंदा आने वाले दिन में हम देखेंगे कि इसके जो MOU साइन होंगे या जो भी तरजीहात सामने आएंगी उस पर मज़ीद हम बात करेंगे आइंदा आने वाला प्रोग्राम में जाकर, और ये देखने की कोशिश करेंगे कि वो जो एग्रीमेंट साइन किए जा रहे हैं आउटसोर्सिंग के लिए उसमें क्या है और क्या लिखा गया है। लेकिन बुनियादी तौर पर जो बुनियादी नुकता हमारा ये है, वो बुनियादी नुकता हमारा ये है कि जो सेहत और तालीम है, ये दो ऐसी चीज़ें हैं जो कम अज़ कम स्टेट हर सूरत में फ़राहम करती है और वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं। तो मेरे ख्याल में इस पे हमें ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है और इस पे बात करने की भी ज़रूरत है। हमने देखा है कि बहुत कम इस पे बात हो रही है। तो मेरे ख्याल में हमने सोचा कि आज इस पर थोड़ी सी बात की जाए। आज हमारा चक्कर भी लगा DHQ अस्पताल में भी, कल डिप्टी कमिश्नर साहब से भी जो है ना वो उन्होंने भी चक्कर लगाया, तो हल्की फुल्की उनसे बात भी हुई थी। हुकूमत कोशिश कर रही है अपनी सतह पे कि इसको जो है ना जो हड़ताल है PMA की या तिब्बी अमले की, उसको ख़त्म किया जा सके, और उस पर कुछ ना कुछ हद तक काम भी हो रहा है। लेकिन बुनियादी सवाल वहीं पे मौजूद है कि आउटसोर्सिंग जो है उससे हमें कितना नुकसान होगा, एक आम आदमी कितना सफ़र करेगा। अब जिस तरह हम बैठे हैं आज यहाँ शहर में बैठे हैं, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ चीज़ें मौजूद हैं, कुछ सहूलियात मौजूद हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो हमारे देही लोगों के लोग हैं उनको मसाइल का सामना होगा। तो जैसा आप क्या कहते हैं, मतलब इस हवाले से इसको हम जो है किस तरह बेहतर कर सकते थे? ये निज़ाम था, इतना बड़ा सेटअप था, एक पूरा आप ये देखें कि इसके मिनिस्टर हैं, इसके सेक्रेटरीज हैं, तो फिर क्या वो हेल्थ के मिनिस्टर जो हैं, वो सेक्रेटरीज जो हैं, जितना बड़ा सेटअप है वो क्या करेगा? देखिए, इतनी बड़ी हुज तादाद में इनके अमला है कि पूरा पंजाब जो है हर बड़े ज़िले में देखें एक MS है, डिप्टी MS है, उसके ऊपर डायरेक्टर है, डायरेक्टर के ऊपर डिप्टी डायरेक्टर है, फिर DG है, फिर DG के बाद सेक्रेटरी है, एडिशनल सेक्रेटरी है, DO बैठे हुए हैं, ये अपना अच्छा जो CO बैठे हैं उनका एक अपना अमला अलग है, MS का अमला अलग है, डायरेक्टर का अलग है, एक पूरा सेटअप है। हज़ारों की तादाद में बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, उनके किराए हैं, उनका क्या बनेगा? उनका ये सूरत हाल ये है कि उसको उन्होंने करने के लिए कि जी ये इसको चेक एंड बैलेंस के लिए जो है उसे रखा जाएगा।
भाई जब आप चेक एंड बैलेंस के लिए रख रहे हैं तो बाकी उसे बेहतर करने की बजाय इसमें बेहतरी पैदा की जा बेहतरी सकती पैदा थी। की जा इस तरह किया जा सकता था कि इसे और बेहतर करके और अवाम को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत गवर्नमेंट की निगरानी रहती। आप जो है आउटसोर्स ना, मुकम्मल आउटसोर्स ना करें, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत हुकूमत की पार्टनरशिप किसी भी आदमी के साथ, किसी भी बड़े आदमी के साथ, सरमायादार के साथ, उसे बेहतर करने के लिए MOU साइन किए जा सकते थे, उसे बेहतर किया जा सकता था। अगर यहाँ सहूलियात का फकदान है, जैसे देही इलाके हमारे, उनमें सहूलियात फराम की जा सकती थी, उनको इस बात पे कायल किया जा सकता था कि आप यहाँ सहूलियात फराम करें, उसके अगेंस्ट हम आपको ये फैसिलिटेट करेंगे। ये फैसिलिटेट करेंगे। ये सही बात है नाज़रीन। असल में बात ये है कि हमें थोड़ी सी ना चीज़ों को करीब से देखने की ज़रूरत है। मतलब हमारा जो हम जिस मुल्क में रह रहे हैं इसमें बहुत सारे लोग जो है ना ख़त ग़ुरबत से नीचे जो है ना, इस वक्त मेरे ज़हन में जो है ना वर्ल्ड बैंक या स्टेट बैंक की जो वर्ल्ड बैंक की जो तादाद आई थी वो मौजूद नहीं है। अगर मेरे इल्म में होता तो मैं लाजमी वो देख के आता। हमारा अचानक ही प्रोग्राम बना, हमने ये प्रोग्राम आके जब देखा तो हालात ऐसे थे तो हमने कहा चलो इस पर थोड़ी बात करते हैं। बुनियादी तौर पर बात यह है कि हमारे जो अवाम है ना, बहुत बड़ा तबका जो है पाकिस्तान का वो गरीब लोग हैं, यानी कि उनकी इनकम बहुत कम है और ये एक मेरे ख़्याल में इजाफी मुआशी बोझ पड़ने पे जा रहा है। तो इसमें हम अगर आईने पाकिस्तान को भी देखें तो ये तमाम ज़रूरियात बग़ैर फ्री फराम करना, बिला किसी कीमत फराम करना हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। तो इस पर हुकूमतों को भी सोचना चाहिए, उनको भी देखना चाहिए कि वो मेहरबानी करें, इन चीज़ों को देखें, इन पर दोबारा गौर करें। पॉलिसीज़ बनाने से पहले अवाम की हालत देखें, अवाम किस हालत में ज़िंदगी बसर करें। ये अच्छी बात है कि आपका हेल्थ कार्ड चल रहा है, हेल्थ कार्ड आइंदा उसकी क्या सूरत हाल होगी, ये तो जब चीज़ें सामने आएंगी तो उसमें ज़्यादा मज़ीद बेहतर अंदाज में बात हो सकेगी। लेकिन जितनी पॉलिसीज़ बनानी चाहिए हुकूमतों को, वो आवाम को सहूलत के लिए बनानी चाहिए, आवाम को रिलीफ मिलना चाहिए। ये ना हो कि अब जिस तरह अभी बात हो रही थी कि सिटी स्कैन को जो है ना, जंग DH को सिटी स्कैन को आउटसोर्स कर दिया गया, तो यकीनी तौर पर उसकी मखसूस फ़ीस है, वो मखसूस फ़ीस भी जो है ना एक आम आदमी के लिए भरना मुश्किल हो जाती है। तो मेरे ख़्याल में इस पे हमें हुकूमतों को भी गौर करना चाहिए। आपके पास ताकत है, आप रियासत हैं, इसको देखें और एक गरीब आवाम के लिए इस पे रास्ता निकालने की कोशिश करें। और इतना बड़ा एक सेटअप है आपके पास मौजूद है, आपके पास इतनी बड़ी फोर्सेज हैं, तो उनको एम्प्लॉय करें, उनको इम्प्लीमेंट करवाने की कोशिश करें, बजाय इसके कि इन चीज़ों को जो है ना प्राइवेटाइजेशन की तरफ ले जाएँ, आउटसोर्सिंग की तरफ ले जाएँ। इससे बहुत सारे मसाइल, माशी मसाइल अवाम में पहले मुब्तला हैं। तो मेरे ख्याल में इसको मज़ीद बेहतर करने की ज़रूरत है। तो साहब आप क्या कहेंगे कि इस पर क्या तजवीज़ होगी आपकी? फ़र्ज़ करें अगर ये आउटसोर्स हो जाते हैं, यकीनी तौर पर जब चीज़ें हुकूमत ठान लेती है तो वो हो ही जाती हैं, तो फिर इससे हमारे जो गरीब तबका है उस पर किस किस्म के असरात पड़ेंगे? दवाइयाँ बहुत ज़्यादा महंगी हैं, वो उसकी कीमतें बहुत पहले आसमानों से बातें कर रही हैं। तो आप क्या कहते हैं, क्या होना जी चाहिए? बिल्कुल, उसमें देखें पहले ही ऑलरेडी जो ड्रग माफिया है वो अपनी मर्ज़ी से आए रोज़ जिसका दिल करता है वो अद्वियात की कीमतों में इजाफा कर देता है, कभी 10%, 20%, हत्ता कि ऐसे कई बार हुआ है कि 100% जो है उन्होंने अद्वियात की कीमतों में इजाफा कर दिया है। पहले ही हमारे मुल्क में चेक एंड बैलेंस की पॉलिसी जो है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में बहुत कम है। किसी का दिल करता है वो सियासी दबाव के ऊपर, क्योंकि ज़ाहिर है सियासतदान ज़्यादातर मालकान है फार्मास्यूटिकल कंपनियों के। उसके अलावा दूसरी जो चीज़ें हैं आम आदमी के लिए, आम बीमारी के लिए छोटी छोटी चीज़ें, इंजेक्शन है, इंसुलिन है जैसे, और बहुत सारी अद्वियात हैं, वो और ज़्यादा महंगी हो जाएंगी। इंसुलिन ऑलरेडी पहले महंगी है, शुगर की, हार्ट की अद्वियात ऑलरेडी पहले महंगी है। इसका आम आदमी को असर जो है इतना ज़्यादा पड़ेगा कि आप ये सोच लें कि आज जो आपको इंसुलिन 32-73 जो आपको अस्पताल से फ्री मिल रही है उसकी कीमत 850 रुपये है, ठीक है, बाजार में। अब वो जब प्राइवेट हो जाएगा तो वो और ज़्यादा दारा हो जाएगा, वो कहेगा जी मुझे और टैक्सेस लग जाएंगे। ज़ाहिर है उनका आपस में गठजोड़ हो जाएगा, प्राइवेट दोनों प्राइवेट होंगे, उनका आपस में जड़ होगा, वो हज़ारों की तादाद में चले जाएगी, 1500, 2000 की तादाद में चले जाएगी। आम आदमी पे ही असर पड़ना है, आम आदमी पे किसी भी बड़े आदमी पे असर नहीं पड़ना। जो हालात हमारे मुल्क के जा रहे हैं, ज़ाहिर है उसकी सोर्स ऑफ इनकम कम है, महंगाई का तूफान है, उसे खाने पीने लाले पड़े हुए हैं। दवाई तो एक एक्स्ट्रा चीज़ है जो उसको बहुत ज़रूरी है, बुनियादी चीज़ है, बहुत ज़रूरी है। जान बचाने वाली एहतियात बहुत ज़रूरी होती है और बहुत कीमती भी, जैसे खाना ज़रूरी है इसी तरह अद्वियात भी ज़रूरी है। और यकीनी तौर पर जो तिब्बी अमला है, मतलब जो PMA है और दूसरे उनके एसोसिएशंस हैं वो हड़ताल पर हैं, तो उनसे भी हमारी गुजारिश यही होगी कि वो अवामी मसाइल को मद्देनज़र रखते हुए कि ठीक है हड़ताल करें, आपके भी इस पर राइट्स बनते हैं। और उनका कहना ये था कि हम चूँकि आवाम के लिए जंग लड़ रहे हैं, तो मेरे ख्याल में आप इसको एक इस फेज़ में लेकर आएँ कि मिल बैठ के बात करें। हुकूमत को भी चाहिए कि थोड़ा सा नरम गोशा रखें, मिल बैठ के उन चीज़ों को हल करें। बहुत सारे वाक़यात भी हुए हैं जिसमें बहुत सारे मसाइल ने भी जन्म लिया, लेकिन उन तमाम चीज़ों को किस तरतीब के साथ बैठ के बातचीत के साथ हल करना ज़रूरी है। और मेरे ख़्याल में इन पर सोचना होगा हमें भी, और हुकूमतों को इससे नज़रसानी करनी होगी कि
ہمارے جو عوام ہیں وہ ان کی سکت نہیں ہے، وہ اتنا برداشت نہیں کر سکتے، تو اس پہ غور کریں اور صحت اور تعلیم پر توجہ دیں. مجھے تو ایسا گزار دیجیے. اللہ